I'm going to talk about a couple of incidents. Just before that, let me check if I'm getting recorded. Yes. I'm getting recorded. That's nice. So, मेरी मॉम का ऑपरेशन हुआ है, वो भी हॉस्पिटल में एडमिटेड है और उनके दोनों नीज़ में उनको इश्यू हो रहा था. सो नी रिप्लेसमेंट हुआ है. ये पूरा कैशलेस प्रोसेस हुआ है और I mean the procedure or the surgery amounts to a lot more than what the insurance covers. So जो भी इंश्योरेंस कवर करती है वो कैशलेस है और उसके ऊपर जो भी पे करना है वो हम पे कर रहे हैं. So उसी से याद आया जब मैं रूम में बैठा था कल उनके, तो याद आया कि उनके नी से रिलेटेड ही एक पहले भी एक प्रोसीजर हुआ था. अगेन शी हैड ट्रबल विद हर नीज एंड डॉक्टर सजेस्टेड अ सर्टेन सर्जिकल इंटरवेंशन टू सी इफ यू नो थिंग्स कैन इम्प्रूव फॉर हर. तो जब वो प्रोसेस हुआ था तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का उस हॉस्पिटल या उस डॉक्टर के सेटअप के साथ कोई टाई अप नहीं था. तो जब प्रोसेस हुआ तो हमने जो भी पेमेंट करना था वो हमने किया और उसके बाद हमें इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स करेगी, ऐसा अरेंजमेंट था. तो हमने तो पेमेंट कर दिया. अब जो इंश्योरेंस कंपनी का जो टीपीए है तो वो प्रोसेस रीइंबर्समेंट के प्रोसेस को डिले करने लग गया. सो एंड I do not remember the particulars, but they may have asked some questions or raised this and that, and we replied to those questions, and expecting that having replied, now things will move. So the TPA started delaying the process. Okay, by that what I mean is they were hesitating and reimbursing the amount to us for this particular procedure on the knees. Okay, so it was all on the approved list. All the procedure and this and that was on the approved list, and we had informed the insurance company beforehand about the procedure also. But it's just that since they did not have the arrangement with the particular hospital, they did not accept it as a cashless process. So anyway, all that happened. So since TPA started delaying the process of reimbursement of the insurance amount, okay, so I wrote to whatever authority was applicable for that particular matter or issue, and so I wrote to the insurance company. I think it was Oriental Insurance Company back then, and I also may have written to some other authorities who look into these matters. So what happened is interesting. I think it was our insurance agent, no, not the insurance agent, but somebody from the insurance side, some agent or some person who plays a role in approval of all these things. Maybe it could have been some guy from TPA. So he called up and he called me up and said, आप पेपरबाजी क्यों कर रहे हो? You see that? वो बोल रहा है कि आप पेपरबाजी क्यों कर रहे हो. So मैंने तो वही वर्ड लिख के और अथॉरिटीज को फिर एक ईमेल लिख दिया कि this guy is saying कि मैं पेपरबाजी कर रहा हूँ. And then things happened and I think he apologized, and then whatever reimbursement had to happen, all that process happened, and we got the insurance amount for that particular operation. So this is what happens. जब आपसे पैसे लेने होते हैं ना, तब तो आपसे रिलेशनशिप बनाते हैं, और जब आपको सही से ट्रीट करने की बारी आती है या कुछ डिलीवर करने की बारी आती है, तो वो पैसे भूल जाते हैं और वो रिलेशनशिप भी भूल जाते हैं. तब आप पेपरबाज हो जाते हो.
और आप पेपरबाजी कर रहे होते हो उनके लिए, राइट? यू आर अ पेपरबाज एंड you do paperbazi in their language. This is how it is. And I do not know what's the status of insurance companies these days. Do they do such things? Do the TPAs do such things? I do not know. Have they improved these days? I'm not sure. I mean, I've not dealt with these things lately. So but that's the thing, when you pay any amount, okay, at that time you are godly. Consumer is the king, right? You are godly. They would treat you like God. सर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अच्छा सर ये फोटोकॉपी कराना मैं करा देता हूँ आपके लिए, ये करना है मैं करा देता हूँ आपके लिए, आप इसकी चिंता मत करो, आप मेरे को बस ये डॉक्यूमेंट दे दो, फॉर्म वगैरह मैं फिल कर दूंगा, राइट? When you are about to pay your monies, they do all these things. And when it comes for them to do their part, when you are in trouble or when you are asking for the rightful things that you're supposed to get, at that time you become paperbaz. मैंने आपको बताया था मेरे ऑफिस कॉम्प्लेक्स के कॉन्टेक्स्ट में, अभी ये लोग सोच रहे होंगे ये पेपरबाजी कर रहा है सपोजिटली। अरे भाई मैं तो विलन हूँ ना, सॉरी, आई एम द विलन। सो विलन क्या करता है? विलन पेपरबाजी करता है क्या विलन पेपरबाजी? करनी चाहिए विलन को पेपरबाजी ना। हीरोज करते हैं पेपरबाजी? नहीं, हीरोज रिलेशनशिप बनाते हैं। आई गॉट इट। हीरोज रिलेशनशिप बनाते हैं और विलन्स जो हैं वो पेपरबाजी करते हैं, सही बात तो ये है कि ये सब डेलिबरेट है। पेपर सबको पता है, ये मेरा अंदाजा है एक्चुअली कि सबने सब पेपर्स पढ़े हैं, एटलीस्ट देखे तो हैं। अगर ध्यान से भी नहीं पढ़े, मैं एक बार मान सकता हूँ कि बहुत ध्यान से नहीं पढ़े, बट पेपर्स पढ़े हैं और फिर भी नौटंकी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका फायदा होता है। मतलब कुछ लोगों के कॉन्टेक्स्ट में तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ, जो ट्यूशन क्लास रन कर रहा है तो उसको बहुत सारी पार्किंग्स चाहिए, तो वो सबकी पार्किंग चाहे हड़प ले तो भी उसको चैन नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो उसका इंटरेस्ट तो मेरे को समझ आता है, राइट? पर कई बार कुछ लोगों का इंटरेस्ट मुझे नहीं समझ आता है। मे बी वो रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, आई मीन दे आर ट्रूली रिलेशनशिप बिल्डर्स, राइट? तो उसमें चाहे किसी का नुकसान हो रहा हो, दूसरे मेंबर का नुकसान हो रहा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। उससे क्या लेना देना है भाई? मेरा तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन रहा है। और कई बार पदवी बहुत अच्छी लगने लग जाती है, मतलब द पदवी ऑफ सेक्रेटरी, पदवी ऑफ चेयरमैन, पदवी ऑफ ट्रेजरर, चेयर्स, दीज आर ऑल चेयर्स। इन वन ऑफ द मीटिंग्स आई वाज टोल्ड रिस्पेक्ट द चेयर, बट if the chair can't be fair, what respect? He didn't see me eye to eye and says respect the chair. अरे भाई, what respect the chair? You do not understand how to be fair and you're sitting on the chair. What's the point? What's the point of chair? What's the point of anything then? So my guess is that इन सबको सब कुछ पता है, पर पेपर फॉलो नहीं करने हैं। और पेपर भी गवर्नमेंट ने ऐसे ही नहीं बना दिए। पेपर गवर्नमेंट ने कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बना रखे हैं। तो अगर हम कंज्यूमर हैं और हम वो पेपर्स नहीं पढ़ रहे हैं या ना उन पे ध्यान दे रहे हैं, राइट? आई मीन chairman is also a consumer of in the same way that I am, whether his property is big or small or whatever, but he's also a consumer, right? So अगर हम पेपर नहीं देख रहे हैं और पेपर देख के हम इग्नोरेंट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं या विम्सिकल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो व्हाट्स द ऑप्शन, व्हाट्स द सॉल्यूशन? क्या करना चाहिए फिर? रिलेशनशिप बिल्डिंग में आप पेपर्स इग्नोर कर दो, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस इग्नोर कर दो, ये सब क्या चीज़ है?
क्या चल क्या रहा है. So apparently they behave as if they have not read the papers because they want to do what they feel like for their benefit, for their purposes, right? And they want to encroach upon others' interests or others' rights, I would even say. They want to do all of that and keep it all for themselves. ये जो SUVs और ये सब कहाँ से आती है? One of the sources is this kind of behavior and this kind of conduct as office bearers, this kind of conduct. This is how relationships are built, this is how wealth is amassed. Or as office bearers, as people sitting on the chair, aren't you supposed to know the law? And in case you become aware of the law, what are you supposed to do? What are you supposed to do? One can say that one doesn't know everything, right? There are things that one becomes aware of over time. There are things that one learns over time. But when you learn all of those things, when you become aware of all of those things, what is your conduct? What should you be doing? What should be the fair approach? Right? वो करना नहीं है. उनके लिए इनको पुश करना पड़ रहा है. पुश करना पड़ रहा है. और फिर बोलेंगे कि आप पेपरबाजी कर रहे हो. पेपरबाजी. पेपर पे लिखा है for a reason. You were taught in the school to read all the things given in your textbook, and then you were tested on those things which were written in the textbook and which you read and perhaps tried to mug up or perhaps tried to understand. You were tested on it for a reason. Right? आपको रीडिंग करने के लिए इतनी मेहनत टीचर्स ने इसलिए की, रीडिंग करवाने के लिए, रीडिंग सिखाने के लिए, कि आप जो पढ़ें तो उनका मतलब समझें और वो क्यों लिखा गया है वो समझें, उसके पीछे क्या हुआ वो समझें, और फिर जो आपको करना है वो आप करें. ये लोग कुछ पढ़ के भी या जान के भी कुछ भी नहीं करना चाहते. या आई डोंट नो, करना चाहते हैं तो व्हाट इज स्टॉपिंग देम? एटलीस्ट आई डोंट नो, इट्स नॉट इन माई अवेयरनेस, बट आई सी दैट नॉट मच इज बीइंग डन. दे आर जस्ट rattling off some nonsensical or almost illogical things in the circulars, passing this, that, writing this, that as minutes, or God knows what kind of discussion they do. If the discussion cannot follow the rules and regulations in the law, if it does not tie into those things, what's the point of these discussions and committee meetings and this and that, chairpersoning? Weird people, very very weird people, weird behavior. And there is a generation which has taught youngsters only this kind of thing, and this is that generation. Imagine these are the same guys who would be running tuition classes and all that. ये पढ़ाएंगे बच्चों को? क्या ये बता सकते हैं बच्चों को कि मीनिंग क्या होते हैं और मीनिंग को फॉलो करना क्या होता है और फेयरनेस क्या होता है? और फेयर नहीं रहोगे तो आपकी घंटा प्रोग्रेस होने वाली है. प्रोग्रेस होगी, इसको प्रोग्रेस बोलते हैं. और इन्हीं बड़े बड़े लोगों के बच्चे जाते हैं आईवी लीग कॉलेजेस में पढ़ने. जैसे वो JNK में, आपको पता है ना, JNK में जो पॉलिटिशियंस हैं उनके बच्चों को तो वो लोग बाहर पढ़ा रहे हैं आईवी लीग कॉलेजेस में, और यहाँ पे जो है लोगों की हालत खराब कर रखी है. तो ये हाल है.
मुझे याद है हमारे चेयरमैन भाई के बच्चे थे जो आईवी लीग कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो उनके जो ट्यूशन स्टूडेंट्स हैं उनको एक बार मतलब पेप टॉक की तरह यहाँ पे कुछ अरेंज किया था हमारी ऑफिस कॉम्प्लेक्स की लॉबी में या ओपन स्पेस में. पेप टॉक, इंस्पिरेशन, दिस दैट, ऐसे इंस्पायर करते हैं. How do things happen? और अगर जो कोई भी papers have to follow rules and regulations, and rules and regulations were introduced for certain purposes, right? I understand that sometimes it is not, I mean in small matters or trivial matters it is not possible to do things to the T. That is understandable. But who's talking about the small matters really? ये जो matters हैं ये बड़े matters हैं, और बड़े matters का impact बड़ा होता है. आपके लिए फ़ायदा हो रहा है क्योंकि आप ये सब कर रहे हैं, दूसरे members को नुकसान हो रहा है क्योंकि you are encroaching upon the territory of other members, upon the rights of other members, because they have also done things with their hard earned money. एक टिप है इसमें, एक टिप है, जब भी रियल एस्टेट लेने जाओ तो मेरे ख्याल से ठीक है आपने प्रॉपर्टी देख ली, आपने उनके मार्केटिंग मटेरियल फलाना ब्रोशर ये वो और सैम्पल फ्लैट या सैम्पल ऑफिस या सैम्पल स्पेसेस और वो सब देख लिए, बहुत अच्छी बात है. पर उसके साथ आपको उनसे मांगना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट दीजिए, इवन बिफोर यू पे द बुकिंग अमाउंट, कि व्हाट डू यू राइट इन द कॉन्ट्रैक्ट, आई वुड लाइक टू सी. जिस तरह से आप टेक्स्ट बुक्स में देखते थे, टीचर्स आपको टेक्स्ट बुक्स देती थी, टेक्स्ट बुक्स में स्टोरीज होती थी, जैसे इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, उन टेक्स्ट बुक्स में स्टोरीज होती थी, वो स्टोरीज आप पढ़ते थे, टीचर्स आपको बोलते थे कि इसमें जो भी आपको डिफिकल्ट वर्ड लगे उसको आप डिक्शनरी में मीनिंग देखिए ताकि आपको समझ आए कि वो क्या लिखा है. So there would be difficult words for which you would have to check meanings in the dictionaries and then try to understand what the writer or the author has written. So similarly, either contract is also a certain, let's say a story or a set of words, right, in which your interests lie. तो अगर आप वहाँ पे हर एक शब्द ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारे मीनिंग्स नहीं पता है, और वो मीनिंग्स नहीं पता है इसका मतलब आपको ये पता नहीं है कि आपको मिल क्या रहा है या क्या नहीं मिल रहा है. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, ऐसे सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस हैं, ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो नहीं समझ आ रहे हैं, तो वो आपको उसका मीनिंग उन्हीं को पूछना है या फिर किसी और को पूछना है, बट बिना मीनिंग क्लियर किए आपको बुकिंग अमाउंट भी नहीं देना चाहिए. And you should ask for a draft of the contract even before the booking amount. If the sellers do not give you that, no matter how much you like the property, this, that, whatever you see, no matter how much you like, you don't have to trust. Do not trust. Let go of it. Let go of it. Look for something else. The place where they are agreeable to share the draft of their contract, कि if you buy property in this complex or in this project, this is the kind of contract you will be signing, and this is what, as part of the in the contract, of course it will be written, contract or sale deed or whatever, it will be written what you are getting and what you are not. और अगर फिर भी आपने अच्छे से समझ लिया है, मीनिंग्स भी समझने की कोशिश की, फिर भी आपको कहीं डाउट होता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप फिर पूछिए कि आप मेरे को सिंपल लिस्ट में बताइए कि मुझे क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, और वो लिस्ट मिल जाए. उसके बाद आप उसको चेक कीजिए लॉ के साथ कि व्हाट इज द लॉ अलाउ एवरी कंज्यूमर एंड व्हाट डज द लॉ अलाउ एवरी सेलर. What does the rules and regulations say that a consumer of a real estate ought to get this,
and a consumer of the real estate may not get this. So read. I mean, it is only now that I can appreciate reading so much more. अच्छा है मेरी वो हैबिट हुई, एंड थैंकफुली चलो मैंने लेट पढ़ा बट मैंने पढ़ा. तो आपको भी वही करना है. अगर कुछ पसंद आता है और उसका सेल लीड वगैरह सब बनना है, तो आप पहले वो सारे वर्ड्स देखिए, क्योंकि सारी गड़बड़ ये लोग वर्ड्स में करते हैं, सारी गड़बड़ कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं, और सारी गड़बड़ वहाँ करते हैं जहाँ पढ़ते नहीं है. ये हमने हमारे बिजनेस में भी देख लिया है, और ये मैंने इस रियल एस्टेट वाले इश्यू में भी देख चुका हूँ. नहीं तो इन टाइप के लोगों से और मेंबर्स से आपको जूझना पड़ेगा. एंड मेंबर्स विल बी वॉचिंग. मजा आ रहा होगा उनको, ये लड़ना दो, करने दो, क्योंकि फायदा उनको भी होगा. जब ये सारी चीजें होंगी फायदा उनको भी होगा. कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है, बट देन उनको लगता है कि हमने पैसा दिया है तो हम सही है. आई मीन यहाँ पे ऐसा भी तो है कि हमने पैसा दिया है इसलिए हम सही है, इसलिए सब कुछ लेजिटिमेट है. हमने पैसा दिया तो हमारा हक है, चाहे वो पैसा किसी के लिए भी दे दिया. यू नो, अनरीजनेबल चीज के लिए, रीजनेबल चीज के लिए, वो नहीं देखना है, बट पैसा दे दिया बस, तो ये सब हो गया काम, ये हमारा है. उस टाइप का मेंटालिटी लेके चल रहे हैं. क्या कर सकते हैं? कैन यू डू एनीथिंग इफ दैट्स द मेंटालिटी? It's okay. One has to do all these things. If they don't choose to read, fine. If they want to stay ignorant of whatever the rules and regulations say, fine. You know, I can only throw my challenges. I can only do whatever I have to do to protect my interests. Isn't it? So anyway, I hope you cultivate good reading skills among children. I hope if by till now you're not fond of reading a lot of things. I know legal language is slightly difficult, and the kind of language they use in contracts and this and that, that's also tedious and sort of difficult. But I would urge you that a lot of money rides on those words, on those things. Right? So be careful. No matter the pain, take that pain before committing your monies, before committing even the booking amounts. Right? Forget the investors, forget your liking for properties, forget this, forget that, forget the reputation of builders. Our builder, by the way, is very reputed. My dad told me the other day while talking in the morning that हमने इतना कभी सोचा नहीं, क्योंकि बिल्डर बहुत रेप्यूटेड है और इतने अच्छे उसके प्रोजेक्ट्स हैं. गॉड नोज उन प्रोजेक्ट्स में उसने क्या किया, मे बी अच्छा बना है, बट इस प्रोजेक्ट में तो ही हैज स्क्रूड सम पीपल्स हैप्पीनेस. राइट? सो डू नॉट गो बाय रेपुटेशंस, डू नॉट ट्रस्ट रियल एस्टेट, डू नॉट ट्रस्ट. डू plenty of homework before committing even the smallest amounts of monies. I hope the message is clear. I'll come back to you soon enough, and thank you for listening so far. See you.